جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جہاں آج متحدہ عرب امارات آباد ہے، آج سے 6000 سال پہلے یہاں کسی انسان کے بسنے کا وجود تک نہیں تھا۔ ان ریگستانوں کو آج سے 4 سے 5000 سال پہلے بدو قبائل نے آ کر آباد کیا تھا۔ ان بدو لوگوں کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اردن، سعودی عرب، مصر، عراق اور شام جیسے ممالک میں یہ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ان کا زیادہ تر ذریعہ معاش اونٹ، گھوڑے اور بھیڑ بکریاں پالنا ہوتا تھا۔ یہ لوگ اپنے مستقل گھر بنانے کی بجائے جہاں کہیں پانی ملتا یا کھانے کی کوئی چیز دستیاب ہوتی وہیں پر اپنے ڈیرے ڈال لیتے تھے۔ یہ بدو لوگ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے ہر قبیلے کا ایک سردار ہوا کرتا تھا۔ زمانہ اسلام سے پہلے مسیحیت ان لوگوں کا مذہب ہوا کرتا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی تو عرب کے بیشتر ممالک نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ کچھ سرداروں نے مزاحمت بھی کی، لیکن متحدہ عرب امارات کے ان قبیلوں میں اسلام کی صحیح شمع خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلائی، اور یوں عرب امارات کی ان ریاستوں میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ یورپ میں اندلس کے غروب ہونے تک متحدہ عرب امارات کے ان علاقوں میں بھی اسلام عروج پر رہا، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی آپسی ریشہ دوانیوں نے اسلامی طاقت کو کمزور کیا، ویسے ہی اہل یورپ مسلم ممالک پر اپنی بادشاہت کے خواب دیکھنے لگے۔ عثمانی حکمرانوں کا جب بحیرہ عرب کے ساحلوں پر زیادہ زور نہ چل سکا تو اہل پرتگال متحدہ عرب امارات کے ان ممالک کو اپنی ملکیت بنا بیٹھے۔ پرتگالیوں کے بعد یہ علاقہ کچھ عرصہ ڈچ امپائر کا بھی حصہ بنا رہا۔ 1820 میں یہ علاقہ برطانوی حکومت کے نگیں ہو گیا۔ برطانوی حکومت نے اس خطے کو ریاست ہائے ساحل متصالح کا نام دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے ساتھ ہی برطانوی حکومت کا جب زوال شروع ہوا تو دنیا کے بیشتر برطانوی مقبوضہ ممالک آزاد ہونے لگے۔ 1970 سے پہلے برطانوی اپنی فوجوں کو سرزمین عرب سے نکال چکے تھے، لیکن اپنے بعد کسی خاص حکومت کو چھوڑ کر نہیں جا رہے تھے۔ 2 دسمبر 1971 کے روز متحدہ عرب امارات نے زید بن سلطان ال نہیان کی قیادت میں آزادی حاصل کی، اور دنیا کے بیشتر ممالک نے متحدہ عرب امارات کی اس آزادی کو تسلیم کر لیا۔ 7 دن بعد یعنی 9 دسمبر کو اقوام متحدہ نے متحدہ عرب امارات کی اس آزادی کو بھی تسلیم کر لیا۔ ابوظہبی جو رقبے میں UAE کی سب سے بڑی ریاست تھی، سلطان کا تعلق بھی ابوظہبی سے ہی تھا، اور ملک کا سب سے اہم حصہ بھی یہی شہر اور یہی ریاست تھی۔ دبئی، شارجہ، عجمان، القوین، فجیرہ اور ابوظہبی یونین کی شکل میں آزاد ہو چکے تھے، لیکن راس الخیمہ ان سبھی سے آزاد ایک الگ ریاست کی شکل میں تھا۔ آزادی کے اگلے سال 10 فروری 1972 کے روز راس الخیمہ نے بھی متحدہ عرب امارات میں شمولیت کا اعلان کر دیا، اور یوں 7 ریاستوں کے وجود سے متحدہ عرب امارات وجود میں آیا۔ دوستو، ہم نے UAE کے ماضی سے آپ دوستوں کو روشناس کروا دیا۔ اب آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس YouTube چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ رشتہ اسی طرح برقرار رہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کے دلچسپ و عجیب حقائق اور اہم ترین معلومات کی۔ دوستو، یہ ملک UAE 83,600 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ اس وقت دنیا کا 114واں بڑا ملک ہے۔ خلیفہ بن زید ال نہیان ملک کے صدر ہیں۔ محمد بن راشد ال مختوم ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ UAE میں سرکار کا نظام نہ تو جمہوری ہے اور نہ ہی شاہی، بلکہ یہ آئینی بادشاہت کے اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے۔ ابوظہبی ملک کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ ملک کا 86% رقبہ یعنی 67,340 مربع کلومیٹر کا رقبہ ریاست ابوظہبی کی ملکیت ہے۔ 3,885 کلومیٹر یعنی ملک کے 5% رقبے پر ریاست دبئی قائم ہے۔ تیسری بڑی ریاست شارجہ ہے جو 3.3% رقبے یعنی 2,590 مربع کلومیٹر کی ملکیت ہے۔ 16,084 مربع کلومیٹر یعنی 2.2% رقبے پر
रास अल खैमा का झंडा लहराता है। इसी तरह फजेरा और उम्मुल कवीन के बाद अजमान मुल्क की सबसे छोटी रियासत है, जो एक शहर के रकबे पर मुश्तमिल है। रकबा सिर्फ 259 मरबा किलोमीटर है। 97,70,000 अफराद की आबादी के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया में 92 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। दुनिया में मुहाजिरीन की फीकस के हवाले से सबसे ज़्यादा तादाद भी इसी मुल्क में बसती है। यहाँ मुल्की आबादी 11%, जबकि गैर मुल्की बासी 89% के करीब है। मुल्क में सबसे ज़्यादा गैर मुल्की भारत से, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलिपीन, ईरान, चाइना और दूसरे ममालिक के रहने वाले आते हैं। अरब अमारात के एक कानून के मुताबिक जो गैर मुल्की 20 साल से इस मुल्क में रह रहा है, जो फर अरबी बोल सकता है और इस अरसे के दौरान उन्होंने यूएई के किसी भी कानून को अपने हाथ में ना लिया हो, इस मुल्क की शहरियत के काबिल हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी सिर्फ 14 लाख गैर मुल्की अरब अमारात की शहरियत रखते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब यहाँ इस्लाम है। मुल्क की आबादी के 76% लोग मुसलमान हैं। 12.6% मसीही आबादी भी यहाँ पर बसती है। 6.6% हिंदू, 2% बुद्ध लोग, 1% में सिख, बहाइयत और दूसरे मज़ाहब के लोग भी यहाँ पर आबाद हैं, जबकि बाकी चंद सौ अफराद किसी भी मज़हब से अपने आप को नहीं जोड़ते। याद रहे, मुत्तहिदा अरब अमारात की लगभग 100% आबादी मुसलमान है। जो गैर मुस्लिम इस मुल्क में बस चुके हैं, वो सभी दूसरे ममालिक से अरब अमारात में काम काज के सिलसिले में आकर बसने वाले लोग हैं। 33 लाख अफराद की आबादी का हामिल दुबई शहर मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जबकि अबू धाबी मुल्क का दारुल हुकूमत है। अरब अमारात में सरकारी स्कूलों में निसाब अरबी ज़ुबान में होता है और अरबी ज़ुबान में वहाँ तालीम मुफ्त होती है। इसके अलावा सैकड़ों प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस भी हैं, जो गैर मुल्की ज़ुबानों और ख़ासकर अंग्रेज़ी ज़ुबान में तालीम मुहैया करते हैं। अरब अमारात में आज तालीम की शरह 93% पर पहुँच चुकी है। अरबी लोगों की शिकार और ख़ासकर बाज़ के ज़रिए शिकार की आपने कई वीडियोस देख रखी होंगी। आज आपको बताते हैं कि इसी शौक़ के सबब बाज़ को अरब अमारात का कौमी परिंदा माना जाता है। अरेबियन बारहसिंगा अरब अमारात का कौमी जानवर माना जाता है, जबकि हकीकत में अरेबियन बारहसिंगा चिड़ियाघरों और पार्कों की जीनत बनने के सिवा मुल्क में कहीं भी नज़र नहीं आता। अरब की इन रियासतों में जो जानवर सबसे ज़्यादा है वो है रेत का शहज़ादा यानी ऊँट। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ऊँट को मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी जानवर तक नहीं माना जाता। त्रिबलस के फूल को इस मुल्क का कौमी फूल माना जाता है। जंड के दरख्त को इस मुल्क का कौमी दरख्त माना जाता है। साल 2018 में इस मुल्क में सयाहत की गर्ज से आने वाले गैर मुल्की सयाहों की तादाद 1 करोड़ 60 लाख के करीब थी। सयाहों की इस तादाद से मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी मुल्की मईशत का 10% हिस्सा पूरा किया था। अरब अमारात में इस वक्त लगभग 4,818 मस्जिदें हैं। 10,000 सिखों के लिए एक वक्त में इबादत करने के लिए एक गुरुद्वारा भी है। मसीही आबादी के लिए 9 चर्च भी वहाँ पर बने हुए हैं। एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी है जहाँ बुद्ध मज़हब के लोग अपनी इबादत को मुकम्मल करते हैं। यमन, कतर, ओमान, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात अरब के वो ममालिक हैं जहाँ पर हिंदू बरादरी की इबादत के लिए मंदिर भी कायम हैं। अरब अमारात में हिंदू मंदिरों की तादाद 5 के करीब है और चंद एक मज़ीद तामीर भी हो रहे हैं, जबकि मशरक़ वस्ता में सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। अरब अमारात की एक रियासत अबू धाबी के शहर अबू धाबी में एक रहायशी इलाका जिसे मुसद्दर सिटी का नाम दिया गया है, अरब का एक वाहिद ऐसा शहर है जहां ना तो गंदगी है और ना ही सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। सोलर सिस्टम, वाइन टर्बाइनों और वेस्ट से एनर्जी पैदा की जा रही है। सड़कों पर बिजली से चलने वाली कारें और शहर में सफ़र के लिए सरकारी मेट्रो है, मगर इस मेट्रो का साइज सिर्फ एक फैमिली के बैठने की तर्ज पर बनाया गया है। मुल्क में कुल एयरपोर्ट्स की तादाद 21 के करीब है, जबकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की तादाद 9 है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस वक्त दुनिया का 5वां मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है। पाकिस्तान का 2018 में दफाई बजट 11 अरब डॉलर के आसपास था, तो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात का बजट 22 अरब डॉलर था।
मुत्तहिदा अरब अमारात एक बहुत ताकतवर मुल्क है, लेकिन मुल्क की 40% मईशत का इन्हिसार तेल पर होने और मुस्तकबिल में तेल की ज़रूरत को ख़त्म होता देखकर अरब अमारात की कमज़ोरी का खूब अंदाज़ा होता है। यही वजह है कि अरब अमारात ने तेल और गैस के अलावा अपने मुल्क में बेशुमार सरमायाकारी कर रखी है। ये सरमायाकारी सिर्फ अरब अमारात तक ही महदूद नहीं, बल्कि दुनिया के बेशतर बरे-आज़मों तक फैला रखी है। अरब अमारात की हुकूमत अब सयाहत को बतौर ज़रिया मुआश बनाने की कोशिश में है और बहुत जल्द मुत्तहिदा अरब अमारात की आमदनी का पहला बड़ा ज़रिया सयाहत ही होगा। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत, दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा फ़ोटो फ्रेम, इंसानों की मदद से मसनूई तैयार किया गया पाम आइलैंड जहां करोड़ों की जायदाद बिकती है। सहराओं में खोला जाने वाला सबसे बड़ा सफारी डेजर्ट पार्क भी इसी मुल्क में है। यानी मुत्तहिदा अरब अमारात खासकर दुबई हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की है कि सियाहत को बढ़ाया जाए और दुबई की इन कामयाबियों की एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्होंने जो किया वो सबसे बड़ा किया। इनका मिशन एक ही है, या तो नंबर 1 या ओनली 1। अरब अमारात के अमरीकी अफवाज के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक अरब में होने वाली खाना जंगी में मिलजुल कर काम करते हैं। इस वक्त 2000 अमरीकी फ़ौजी UAE में मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वक्त 200 ममालिक के लोग बसते हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान अंग्रेज़ी है, लेकिन मुल्क की सरकारी ज़ुबान का दर्जा अरबी को हासिल है। दूसरी ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानों में उर्दू, हिंदी, फ़ारसी, पंजाबी और पश्तो अहम तरीन हैं। चाइनीज़ और दीगर सैकड़ों ज़ुबानें भी इस मुल्क में बोली जाती हैं, मगर वो तादाद में बहुत ही कम होती हैं। दुनिया में इस वक्त बोइंग 777 हवाई जहाज़ सबसे ज़्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात और मुत्तहिदा अरब अमारात की हवाई कंपनी एमिरेट्स के पास हैं, और यह कंपनी दुनिया में 271 एयरक्राफ्ट के साथ 12वीं बड़ी कंपनी शुमार होती है। अरब अमारात में सरकारी नौकरियों में 2/3 औरतें लगी हुई हैं, यानी इस मुल्क में औरतें तालीम के मैदान में मर्दों को पीछे छोड़ चुकी हैं। यही वजह है कि 2/3 सरकारी जॉब्स औरतों के पास है और 1/3 में मर्द हैं, और मर्दों में ज़्यादातर का ताल्लुक दूसरे ममालिक से आकर बसने वालों में से है। दुबई, अबू धाबी, शारजा, अल ऐन और अजमान मुल्क के सबसे बड़े शहर हैं। गैर मुल्कियों की सबसे ज़्यादा तादाद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से होने के सबब क्रिकेट का वहाँ की अवाम में जुनून की हद तक शौक़ है। क्रिकेट अरब अमारात की सबसे मकबूल खेल होने का दर्जा रखती है, मगर अरब के दूसरे कई ममालिक की तरह मुल्क की कौमी खेल का दर्जा ऊँटों की रेस को हासिल है। मुल्क में दूसरी सबसे ज़्यादा खेली और पसंद की जाने वाली खेलों में फुटबॉल, टेबल टेनिस, साइकिलिंग, गोल्फ, बास्केटबॉल, मोटर रेस और फाल्कनरी है। अरब अमारात दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां का मीडिया हुकूमत की इजाज़त के बगैर कई खबरें शेयर नहीं कर सकता। यहां तक कि एक्सीडेंट की खबर तक शेयर करने के लिए भी हुकूमती इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है। मज़दूरों के आलमी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी इस मुल्क में शरेआम होती है, मगर ना तो डिजिटल मीडिया यहाँ पर आज़ाद है और ना ही प्रिंट मीडिया। यही वजह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया के पुरसुकून ममालिक में शुमार किया जाता है। हमारे यहाँ एक कुत्ता भी मर जाए तो मीडिया वाले इसकी खाल भी उतार लेते हैं, और हमारे मुल्क में ये इस मीडिया के सबब ही मुमकिन हुआ है जो आज पाकिस्तान को दुनिया एक ख़तरनाक और हादसों का मारा मुल्क कहती है। वरना हमारा मुल्क पाकिस्तान अरब के कई ममालिक से बहुत ज़्यादा महफूज है। मेहमान नवाजी में और खुश इखलाकी में अरब के सभी ममालिक पाकिस्तान से कोसों पीछे हैं। अरब अमारात की मुल्की करेंसी को दिरहम कहा जाता है। इनका एक दिरहम 42.70 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 19.41 भारतीय रुपयों के बराबर है। कुल मुल्की पैदावार 432 बिलियन US पर है। फीकस आमदनी $41,000 से तजावज़ कर चुकी है। प्लस 971 मुल्क का कॉलिंग कोड है और .ae इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। दोनों ममालिकी सरहदों के दरमियान लगभग 1200 किलोमीटर का फासला है, जबकि वक्त के लिहाज से पाकिस्तान UAE से 1 घंटा आगे है। पाकिस्तान से अरब अमारात जाने के लिए लगभग 40,000 में रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स मिल जाती हैं, जबकि इस मुल्क का वीज़ा पाकिस्तानियों को आसानी से मिल जाता है। वीज़े की आम कीमत क़याम के हिसाब से होती है, जो 15,000 से 30,000 के आसपास होती है।
या कम दिनों के लिए अब ट्रांजिट वीज़ा भी दस्तयाब होता है, जिसकी कीमत इंतहाई कम होती है, मगर इसकी मुद्दत भी 3 से 4 दिनों के लिए होती है। दुबई की सड़कों पर एक तरफ आपको तेज़ रफ्तार फेरारी और मर्सिडीज गाड़ियां घूमती नजर आएंगी और इन गाड़ियों में बैठे अमीरजादे नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको इसी रफ्तार से और तेज़ गाड़ियां नजर आएंगी जिनमें दुबई पुलिस बैठी होगी। यानी अगर मुजरम तेज़ रफ्तार कार का इस्तेमाल करता है तो दुबई पुलिस भी मुजरम से पीछे नहीं रह सकती। दोस्तों, ये बातें तो कुछ भी नहीं, मुत्तहिदा अरब अमारात की एक एक रियासत ऐसे सैकड़ों हकाइक से भरी पड़ी है। आज हम आप दोस्तों से इस वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हुए इजाज़त चाहेंगे और आपसे हमारा ये वादा भी रहेगा कि अरब अमारात की सभी रियासतों के बारे में हम अलग अलग से वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे ताकि आपको अरब अमारात से मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो हबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार लाजमी कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बजरिया कमेंट हमें बताइएगा कि अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए। आप दोस्तों से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के ज़रिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।